Good morning, students. Good morning, and welcome back to our another lecture. Here we have started our principles and methods of enzyme purification, and we have discussed the purification based on the molecular size or molecular mass, and we have shown the two techniques, or we can say two methods: dialysis and gel filtration chromatography, or we can say size exclusion chromatography. Now in this lecture we are going to discuss about the enzyme purification based on the charge, and it also involves two methods. First is ion exchange chromatography and second is electrophoresis. Okay, so these both techniques involve purification or separation of the enzyme based on their charge. Okay, let's see about the ion exchange chromatography. Now in ion exchange chromatography, as the name indicates, there is charge. Okay, here purification is done on the basis of the charge, and the principle is also is very simple, that purification is based on the ion, or purification is based on the charge. Okay, now here two types of ion exchange chromatography are there. The next slide is of the same. Ion exchange chromatography are of two types: cation exchange chromatography and anion exchange chromatography. Okay, now what is the difference between these two chromatography technique, that we will see. As the name indicates, cation exchange chromatography. Now see, chromatography, it involves two preparation of two phases: mobile phase and stationary phase. Okay, and that mobile phase, definitely it is the momentary phase in which your sample solution is been there. Okay, that is the mobile phase. And stationary phase, it is the constant phase which is not movable. Okay, it is stagnant, located in the one place. Okay, and that stationary phase is made up of beads, or we can say resins. As we saw, beads are the polymer. Okay, तो beads का मतलब भी होता है resins. Okay, so now in cation exchange chromatography, or we can say cation exchanger, if beads are negative charge, or if we can say if resins are negative charge, then it is known as the cation exchanger. Okay, and if beads are of positive charge, then it is known as the anion exchanger. Just keep in mind, cation exchanger means what? If beads your this stationary phase is made up of beads मतलब वो resins होते हैं. Okay, which consist of different size pores. So if your resin is of negative charge, it is cation exchanger. If your resin is of positive charge, it is anion exchanger. Okay, so that is the main thing. Now here separation of protein over a column is done, means that our we can say sample solution is moved onto that mobile in onto that stationary phase. So now the principle is just one, that now see, if we will see the diagram before going to the principle, let me tell you, just keep in mind, bead positive charge, then it is anion exchange, and bead negative charge, then it is the cation exchange. Okay, before seeing all this thing, we will just come to the actual process. See here, diagram is there. Now see, actually the general diagram is like this. Let me draw. I'll draw for you the diagram. Okay, now here suppose your, this is your we can say jar. Okay, in this jar it consists of the mobile phase. Okay, this jar is connected to your chromatography column. Okay, this is your chromatography column. Getting my point? And this chromatography column is further connected to the detector which detects, and this detector is further
it generates certain peak, we can say. Okay, it generates certain peak. So this is general, we can say, flow diagram of this ion exchange chromatography. Now in this mobile phase, your sample solution is there and buffer is there. Okay, reserve buffer solution is there, and into that buffer solution you add your sample solution. There is no any change in that sample solution. फिर ये मोबाइल फेज रन आउट की जाती है आपके स्टेशनरी फेज में. ओके, अभी स्टेशनरी फेज, एज आई टोल्ड यू, कटायन एक्सचेंजर एंड अनायन एक्सचेंजर. नाउ सपोज हियर this chromatography column is made up of the negative charge. यहाँ पर क्या है, negative charge है suppose. okay, your chromatography column consists of the negative charge. Now when you add the, let me change the color. Okay, now when you add the your sample solution, any sample solution, मतलब आप अगर प्रोटीन ऐड करते हो, सपोज योर प्रोटीन हियर इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ओके, अगर आपका प्रोटीन यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज का, तो क्या होगा, सी, तो यहाँ पर ऐसे होगा. लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट. सी नाउ हियर इफ प्रोटीन इज योर पॉजिटिव चार्ज, रेजिन, अब मैंने जैसे कि कहा कि अगर आपका रेजिन ये निगेटिव चार्ज होगा तो इट इज़ कटायन एक्सचेंज, अगर आपका रेजिन पॉजिटिव चार्ज होगा तो इट इज़ अनायन एक्सचेंज. ओके, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर है, रेजिन का फंक्शनल ग्रुप. ओके, रेजिन का फंक्शनल ग्रुप भी होता है. अब वो रेजिन के फंक्शनल ग्रुप में, अभी कटायन एक्सचेंज में निगेटिव चार्ज है तो रेजिन का फंक्शनल ग्रुप उसके ऑपोजिट होगा. मतलब क्या, the cation exchanger resin will be of cation exchanger functional group will be of positive charge and anion exchanger functional group will be of negative charge. मतलब opposite होगा. just keep in mind, अगर आपका cation exchange रेजिन अगर अगर कटायन एक्सचेंज रेजिन आपका निगेटिव चार्ज है तो उसका फंक्शनल ग्रुप उसके ऑपोजिट होगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज. अगर आपका अनायन एक्सचेंजर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट होगा, निगेटिव चार्ज. ओके, सो रेजिन का भी फंक्शनल ग्रुप होता है. क्यों फंक्शनल ग्रुप होता है, वाई रेजिन कंटेन्स इज फंक्शनल ग्रुप? सी, इट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टक द प्रोटीन विद दैट रेजिन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो प्रोटीन है वो कॉलम में ठीक से बाइंड हो. तो कॉलम में वो कैसे बाइंड होगा, जब उस कॉलम के रेजिन में कोई फंक्शनल ग्रुप होगा. तो फंक्शनल ग्रुप इट हेल्प्स टू बाइंड द प्रोटीन, इसीलिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ओके, इट हेल्प्स टू बाइंड द प्रोटीन, सो फंक्शनल ग्रुप इज बिन प्रेजेंट. नाउ सी, इफ सैंपल इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या है, रेजिन जो है यहाँ पर रेजिन कैसे, निगेटिव चार्ज. तो रेजिन का फंक्शनल ग्रुप कैसे होगा, रेजिन का फंक्शनल ग्रुप होगा ऑफ पॉजिटिव चार्ज. गेटिंग माई पॉइंट, रेजिन का फंक्शनल ग्रुप होगा पॉजिटिव चार्ज. तो नाउ देर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन द सैंपल प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज एंड रेजिन्स फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा. किन दोनों के बीच में, हमारे सैंपल के पॉजिटिव, अगर सैंपल में पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन होंगे तो देर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन एंड द पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप ऑफ द रेजिन. ओके, तो आप कंपटीशन में कौन जीतेगा, डेफिनेटली आवर सैंपल रिप्लेसेस द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द रेजिन. मतलब क्या है, आपका जो सैंपल है विच वॉज पॉजिटिव चार्ज, इट्स गोइंग टू रिप्लेस, मतलब आपका जो रेजिन का पॉजिटिव चार्ज है वो रिप्लेस होगा बाय द सैंपल्स पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो यहाँ पर सैंपल का पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा टू द निगेटिव चार्ज रेजिन. ओके, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप निकल जाएगा. और कौन निकालेगा उससे, आपका सैंपल अगर पॉजिटिव चार्ज का होगा तो सैंपल will attach to that negative charge and functional group will get removed. Okay, so that is known. अब यहाँ पर क्या हुआ है, positive charge is replaced by the positive charge, right? Positive charge of protein is replaced by the positive charge functional group of the resin. So यहाँ पर positive charge का replacement है, so it is known as the cation exchanger. ओके, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है उसको, कटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी. सो दिस इज नोन एज द कटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी बिकॉज हियर पॉजिटिव चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज.
ऑपोजिट इज द केस विद द अनायन एक्सचेंजर। क्या होगा अनायन एक्सचेंजर में? सेम प्रोसेस होगी, ये प्रिंसिपल मैं आपको समझा रही हूँ। सेम प्रोसेस होगी कि यहाँ पर आपका मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज में आपका सॉल्यूशन है, आप वो सैम्पल सॉल्यूशन स्लोली योर पंप इज बीन देयर, ओके। तो पंप को रेगुलेट करता है स्लो रेट ऑफ योर we can say slow rate of the mobile phase, that mobile phase will pass on to that stationary phase। अब यहाँ पर completely opposite case होगा। opposite case क्या होगा? अब यहाँ पर अभी जो रेजिन्स निगेटिव चार्ज के थे वो रेजिन्स पॉजिटिव चार्ज के होंगे, ओके। पॉजिटिव चार्ज के रेजिन्स हो गए, उनके ऊपर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? निगेटिव चार्ज का, ओके। ऑपोजिट फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अभी सैम्पल सॉल्यूशन में अगर आपका निगेटिव चार्ज प्रोटीन है तो यहाँ पर कंपटीशन होगी प्रोटीन के निगेटिव चार्ज के बीच में और रेजिन के फंक्शनल ग्रुप के निगेटिव चार्ज के बीच में, ओके। और फिर इस कंपटीशन के बीच में या फिर इस कंपटीशन में आपका जो रेजिन का फंक्शनल पॉजिटिव ग्रुप है इट इज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द चार्ज ऑफ द प्रोटीन, ओके। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कौन बाइंड होगा? निगेटिव चार्ज बाइंड होगा ऑफ द प्रोटीन, और रिप्लेस क्या हो जाए, किसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी? रेजिन के निगेटिव चार्ज की रिप्लेसमेंट हो जाएगी और उसके जगह आएगा प्रोटीन का निगेटिव चार्ज। सो देयर विल बी बॉन्डिंग बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ओके। ऑपोजिट चार्ज है तो बाइंडिंग फास्ट होगा, ओके, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। अगर लाइक चार्जेस होते तो इट्स गोइंग टू रिपेल, सो इट्स ऑफ नो यूज, ओके। सो यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज के प्रोटीन बाइंड होंगे एंड दैट बाइंडिंग इज स्ट्रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पर ऐसे बाइंडिंग हो जाती है एंड आफ्टर दैट, सो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल। यर व्हाट हैपेंस, यर निगेटिव चार्ज of your protein, or we can say negative charge of the functional group is replaced by the negative charge protein, so it is called as the anion exchanger resin, okay। anion exchanger resin I am telling you, it's known as the anion exchanger chromatography। और अगर कटायन में अगर पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस हो रहा है तो कटायन एक्सचेंजर, अगर निगेटिव चार्ज रिप्लेस हो रहा है तो इट इज़ दी अनायन एक्सचेंजर। जस्ट दिस प्रिंसिपल कीप इन माइंड, यही एक सिंपल प्रिंसिपल है, ओके। नेगेटिव चार्ज फंक्शन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन, सो यह नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है? आपका अनायन, okay। So it is known as the anion exchange chromatography। So this was the general diagrammatic explanation of, यहीं आगे भी sorry, let me erase this part। So yes, this is the general principle that how proteins are being separated according to their size, okay। So that is been there। Now before going to the next point, अभी डायग्राम में भी आगे वही शो किया गया है, okay। So yes, if it's of use I'll tell you, let me erase this thing also, okay। अब लेट मी टेल यू अबाउट द प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम बफर ऐड किया गया है, बफर में आपका सॉल्यूशन है। नाउ यर फोर, अगर आपको ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी लैब में परफॉर्म करनी है, ओके, इफ यू वांट टू परफॉर्म दिस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इन लैब, सो इन टू परफॉर्म इन द लैब देयर आर 4 steps। सो दिस 4 steps इंक्लूड इक्विलिब्रेशन, लोडिंग, वॉशिंग एंड इल्यूशन, ओके। ऐसे 4 steps है। अभी पहली स्टेप हम देखेंगे इक्विलिब्रेशन, ओके। नाउ इन इक्विलिब्रेशन में क्या होता है? इक्विलिब्रेशन में सेम डायग्राम यू कंसिडर विच आई हैव ड्रॉन, ओके। आई विल ड्रॉ वंस अगेन दैट डायग्राम फॉर द कन्वीनियंट, ओके। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था आपका we can say reservoir या फिर jar which consists of the mobile phase, okay, and then here chromatography column was there, okay। So this was your chromatography column, और यहाँ पर डिटेक्टर है एंड देन यहाँ पर कंप्यूटर है विच विल जनरेट द पीक, ओके, द पीक विल बी जनरेटेड। तो ऐसी कुछ डायग्राम थी, ओके। तो पहली स्टेप अब मैं आपको बता दूं, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या किया जाता है? यहाँ पर सबसे पहले बिफोर पोरिंग द सैंपल आपका यहाँ पर क्या ऐड किया जाता है? बफर सॉल्यूशन, ओके। यार बफर इज बीन एडेड, तो वो बफर
इस मोबाइल फेज मतलब अब इसमें सिर्फ क्या है, आपका बफर है. सो दिस बफर पासिस ऑन टू दिस स्टेशनरी फेज, एंड देन डिटेक्टर डिटेक्ट्स इज एंड देयर इज जनरेशन ऑफ द पीक. अभी जब स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, ओके, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट इट इज़ द ग्राफ ऑफ द बफर. मतलब वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, जस्ट बफर, वी कैन से बफर स्टेशनरी फेज से पास हुआ एंड द स्ट्रेट लाइन इज बीन जनरेटेड. दिस इज द इक्विलिब्रेशन. ये क्यों किया जाता है, वाई इक्विलिब्रेशन इज डन? जस्ट टू चेक दैट योर कॉलम इज बिन प्रॉपरली पैक्ड और नॉट. ओके, यहाँ पर जो आपका क्रोमेटोग्राफी कॉलम है जिसपे आप स्टेशनरी फेज इन विच यू लैंड दी स्टेशनरी फेज, वहाँ पर कोई लीकेज तो नहीं है, तो वो कॉलम प्रॉपरली पैक किया जाता है. अगर बफर का स्ट्रेट लाइन ग्राफ डिटेक्ट नहीं होता है तो इट इंडिकेट्स दैट कॉलम इज बिन लीक्ड समवेयर. ओके, और अगर स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होती है इस पीक में इनिशियली, तो इट इंडिकेट्स दैट योर कॉलम इज प्रॉपरली पैक्ड एंड नाउ इट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज नाउ इट्स रेडी फॉर लोडिंग द सैंपल. तो आपकी सेकेंड स्टेप क्या आती है, लोडिंग. अभी इसी बफर सॉल्यूशन में योर सैंपल सॉल्यूशन विच कंटेन द प्रोटीन इज बीन एडेड इनटू द मोबाइल फेज. ओके, और धीरे से स्लोली यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर पंप होता है, तो दिस पंप कंट्रोल्स द फ्लो रेट. नाउ दिस सैंपल सॉल्यूशन इज पास्ड ऑन टू द क्रोमेटोग्राफी कॉलम. अभी यहाँ पर अगर आपका कटायन एक्सचेंजर है, ओके, कटायन एक्सचेंजर है, तो इट विल कंटेन द निगेटिव चार्ज. जैसे मैंने आपको पहले प्रोसेस बताई तो वही प्रोसेस होगी, और ultimately the proteins are going to bind, okay, and then they are going to generate the peak. okay, this was just यहाँ पर लोडिंग में सिर्फ सैंपल लोड किया गया है और क्रोमेटोग्राफी रन की जाती है. ठीक है, आपकी थर्ड स्टेप है, मतलब अभी यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेप जैसे सैंपल लोड किया गया है, देयर विल बी जनरेशन ऑफ द पीक. ओके, द जनरेशन ऑफ द पीक मतलब एक यहाँ पर ऐसा पीक आ जाएगा. ओके, one peak will come. As peak starts to form in this graph, we start collecting the we start collecting the sample. okay, हम sample collect करने की शुरुआत करते हैं. तो sample collect करने की शुरुआत हम कब करते हैं? now in the third step is your washing. now यहाँ पर washing किसकी की जाती है? free molecules are washed away. means what? अगर कुछ proteins जो रेजिन्स के जो रेजिन्स को बाइंड नहीं हुए हैं, ओके, जो रेजिन्स के ग्रुप को बाइंड नहीं हुए हैं, मतलब दे आर फ्रीली फ्लोइंग इन द क्रोमेटोग्राफी कॉलम, उन जो फ्री फ्लोइंग पार्टिकल्स है उनको वॉश किया जाता है. सो थर्ड प्रोसेस इज योर, और वी कैन से थर्ड स्टेप इज योर वॉशिंग. नाउ इन द वॉशिंग स्टेप व्हाट हैपन? पीक स्टार्ट्स टू फॉर्म इन ग्राफ. ओके, एंड वी स्टार्ट कलेक्टिंग आवर वॉश आउट मटेरियल इन डिफरेंट ट्यूब. ओके, तो फ्री मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? फ्री मॉलिक्यूल्स ये वॉश्ड अवे हो जाते हैं, मतलब जो बाइंड नहीं हुए वो मॉलिक्यूल्स हम वॉश करते हैं, और उसी वॉश्ड मॉलिक्यूल्स एक सेपरेट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है, विच इज़ बिन कलेक्टेड हियर ओनली. एट द सेम टाइम यहाँ पर हम वॉश आउट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कलेक्ट होते हैं, और वो वॉश्ड आउट मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर पीक जनरेट होता है इन द थर्ड स्टेप. okay, and the last step is elution. as the name indicates, we have to elute out. क्या elute out करना है? now charged sample which is bound, okay, जो charged sample जो रेजिन को बाइंड हुए हैं वो क्या किए जाते हैं? इल्यूट किए जाते हैं. okay, because हमारे अल्टीमेटली क्या चाहिए? अल्टीमेटली वी हैव टू प्यूरिफाई इट. okay, we have to purify it, so elution buffer is used which break the bond. अब क्या किया जाता है? फिर से लास्ट स्टेप में इल्यूशन में सिर्फ बफर ऐड किया जाता है, सो दैट आपके जो प्रोटीन्स बाइंड हो चुके हैं आपके रेजिन के साथ, वो प्रोटीन्स जिस बॉन्ड से रेजिन के साथ बाइंड हुए हैं वो बॉन्ड ब्रेक करता है. okay, buffer breaks that bond and ultimately that proteins are being separated from the charge of the resin and they are collected into the separate tube. okay, so as it starts there is formation of the graph and we start collecting our purified sample. okay, तो हमें जो स्पेसिफिक चार्ज के प्रोटीन्स हैं उस स्पेसिफिक चार्ज के हमें वी कैन से प्रोटीन्स एक सेपरेट ट्यूब में मिलते हैं. एज सी प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, एरोमेटिक, बेसिक, पोलर. ओके, तो
उस हिसाब से, उस चार्ज के हिसाब से वो प्रोटीन सेपरेट आउट होंगे, चार्ज के हिसाब से वो प्रोटीन्स एक सेपरेट ट्यूब में कलेक्ट होंगे एंड देयर विल बी जनरेशन ऑफ द पीक. ओके, और अगर स्ट्रेट लाइन बीच में आती है तो इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ दी दैट लाइन इज ऑफ द बफर सॉल्यूशन, बिकॉज इल्यूशन के लिए हमने बफर यूज़ किया है, इसीलिए पहले पीक के बाद दूसरी स्ट्रेट लाइन जनरेट हुई है विच इज़ ऑफ बफर. फिर सेकेंड पिक जनरेट हुआ है आपका प्यूरिफाइड प्रोटीन का. ओके, विच विल बी ऑफ एनी विच विल बी कलेक्टेड इन द ट्यूब. ओके, जैसे ट्यूब में प्रोटीन कलेक्ट होता है वैसे ही एट द सेम टाइम ग्राफ जनरेट होता है. अगर ट्यूब में प्रोटीन प्यूरिफाइड फॉर्म में कलेक्ट नहीं हुआ तो ग्राफ जनरेशन ऑफ द ग्राफ विल बी नॉट देयर. ओके, सो दिस इज द, we can say, a general concept of the ion exchange chromatography. Getting my point? So 4 steps are there. Equilibration means what? First you आप पूरा जो आपकी assembly है वो पूरे buffer से wash out करते हैं, so to check that column is properly packed or not. Second is loading. यहाँ पर सिर्फ आपका sample load किया जाता है stationary phase के ऊपर, okay, into the column, और slowly load किया जाता है ताकि अगर आपके प्रोटीन ये जो जिस भी चार्ज के है वो धीरे से उनको बाइंडिंग को समय लगता है, तो रेजिन अगर पॉजिटिव चार्ज का होगा तो डेफिनेटली निगेटिव चार्ज के प्रोटीन बाइंड होंगे. कैसे बाइंड होंगे? इट विल रिप्लेस द निगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप और वो खुद अपने अटैच हो जाएंगे. तो ये प्रोसेस लोडिंग में होती है. वॉशिंग में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स, जो सैंपल आपने लोड किया है, जो मॉलिक्यूल्स बाइंड नहीं हो पाए वो वॉश आउट किए जाते हैं. वॉश आउट जब वो करते हैं तब वो एक सेपरेट ट्यूब में फ्री प्रोटीन्स जो है वो सेपरेट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है और उस सेपरेट, और एट द सेम टाइम द ग्राफ इज बीन जनरेटेड. एंड द लास्ट स्टेप इज इल्यूशन. Illusion is done by the buffer, by addition of the buffer. Okay, what it does, it breaks the bond between your sample protein and the resin. Okay, so it break the bond and you get the purified protein is been collected in the separate tube, and at the same time the peak is been generated. Okay, so this is all about, we can say, yes, we can say about the general process of this ion exchange chromatography. Let me rub this. Now see, अभी यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ pH ऑफ द बफर इज बीन सिलेक्टेड. ओके, आप कैसे बफर इक्विलिब्रिएशन, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इजंट इट? तो आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि बफर का pH, हाउ इट इज बीन सिलेक्टेड? सो इट इज़ वेरी सिंपल. Now see, ammonium acid, or we can say, yes, amino acid, they carry positive negative charge. Okay, so these are called as the Zwitter ion. ठीक है, Zwitter ion यहाँ एक कंसेप्ट है. Zwitter ion मतलब क्या कि अमाइनो एसिड पे दोनों चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव ऑल्सो एंड निगेटिव ऑल्सो. सो दिस आर मीन्स अमाइनो एसिड कैरिंग बोथ चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव, दिस आर कॉल्ड एज द Zwitter ion. अभी देखिए, अगर अमाइनो एसिड, इफ amino acid is kept in the low pH solution, okay, अगर आपका अमाइनो एसिड ये लो pH solution में है तो फिर अमाइनो एसिड गेन द पॉजिटिव चार्ज. लेट मी राइट इट. सी, अगर आपका अमाइनो एसिड ये लो pH में रखा गया है तो इट गेट दी, अगर लो pH में रखा गया है तो इट गेन दी पॉजिटिव चार्ज. ओके, और क्यों पॉजिटिव चार्ज वो गेन होगा? क्योंकि हियर बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर. ओके, लो pH में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. अगर आपका अमाइनो एसिड ये हाई pH में रखा गया है तो अमाइनो एसिड विल गेन निगेटिव चार्ज. Okay, why? Because concentration of hydroxide ion is more. Okay, so that is the main concept here. तो इसके हिसाब से आपका pH डिसाइड होता है. नाउ यार आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के हिसाब से आपका pH डिसाइड किया जाता है. नाउ व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द स्टेट इन विच प्रोटीन हैज न्यूट्रल इफेक्ट. दिस प्रोटीन हैज न्यूट्रल चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, निगेटिव चार्ज भी नहीं है, नो चार्ज ऑन द प्रोटीन, सो दैट इज नोन एज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. ओके, और अगर लो pH होगा, okay, if low pH is there then your, we can say,
so means if low pH is there, your isoelectric point, that is Pi, will be positive, okay, because your H plus ions are more. And if high pH is there, your protein carry negative charge because your hydroxide ion is more. गेटिंग माई पॉइंट? यही इसी बहुत सिंपल है. लो पीएच है तो अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज. क्यों पॉजिटिव चार्ज उनको मिलेगा? बिकॉज यहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. H प्लस दैट इज स्टैंड्स फॉर द पॉजिटिव. OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो निगेटिव चार्ज. ओके, फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वजह से हम बफर का पीएच डिसाइड करते हैं. तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है कि वहाँ पर प्रोटीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. ओके, तो अगर प्रोटीन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये लो पीएच में होगा तो इट कैरी द पॉजिटिव चार्ज, और अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये हाई पीएच में होगा सो इट कैरी द निगेटिव चार्ज. ओके, सो ऐसे डिसाइड किया जाता है. मैं आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ सो दैट इट विल बी गेट मोर क्लियर टू यू. ओके, लेट मी शो बाय द एग्जाम्पल टू यू. Now suppose here your Pi, that is isoelectric point is 3. ओके, अगर आप सपोज आपका यहाँ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है 3 है. अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज़ ऑपरेटेड बाय द ऑनलाइन सॉफ्टवेयर. ओके, सो दैट इज़ ये ऑटोमेटिक है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. सपोज आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है 3. ओके, और यू हैव डिसाइडेड दैट योर पीएच इज ऑफ 4. ओके, आपके बफर का पीएच कितना है? 4 है. तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोटीन विल कैरी निगेटिव चार्ज. ओके, यहाँ पर क्या होगा? प्रोटीन का निगेटिव चार्ज होगा, राइट? या प्रोटीन विल कैरी निगेटिव चार्ज. सो विच टाइप ऑफ रेजिन्स आर यूज? तो पीआई के हिसाब से बफर डिसाइड किया जाता है. बफर के हिसाब से रेजिन्स भी सिलेक्ट होते हैं. नाउ विच टाइप ऑफ योर रेजिन इज यूज? सपोज नाउ योर अनायन एक्सचेंजर रेजिन है, तो अनायन एक्सचेंजर रेजिन पर कौन सा चार्ज है? anion exchanger resin, it carries the positive charge, isn't it? So anion exchange resin में positive charge है. इसका functional group क्या होगा? Negative. Okay, so protein का negative charge will replaced by the functional group of the anion exchanger. So protein का यहाँ negative charge है. So this can be easily separated. Okay, your pH is 4. pH 4 है, इसका मतलब protein will carry the negative charge, and negative charge protein will get easily separated. Okay, see, this is just the general criteria that how the pH of the buffer is been selected. So that's it. That's not that much important, but just keep this concept in mind. Just keep this concept in mind कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये जनरल टर्म्स है. ज्विटर आयन मतलब क्या? यहाँ पर अमाइनो एसिड इट कैरी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज. ओके, इफ अमाइनो एसिड इज इन लो पीएच सॉल्यूशन, अगर हमने अमाइनो एसिड लो पीएच में रखा है तो अमाइनो एसिड को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. अगर हाई पीएच सॉल्यूशन में रखा है तो अमाइनो एसिड विल गेन निगेटिव चार्ज. वाई? बिकॉज वेयर ईयर हाइड्रोक्सिड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों मैंने आपको बताया? बिकॉज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के वजह से ही पीएच का बफर सिलेक्ट किया जाता है. और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब क्या? यहाँ प्रोटीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे डिटेक्ट किया जाता है? इट इज़ बिन डिटेक्टेड automatically. So that was the just concept to tell you and nothing else. So depending on that isoelectric point we decide the buffer pH of the buffer. Okay, so that was just the, we can say, ion exchange chromatography, which is very simple, but here you have to keep in mind the two important things. That is, first is the principle which I have told you, and 4 steps which are being carried out in lab: equilibration, loading, washing and elution. Okay, so now in next video we will see our we can say second technique, that is gel electrophoresis. Thank you.